Dear friends, so in this video I will be discussing 20 practically implemented techniques to reduce stress. See, in modern world stress is very common. May it be your family front, your business, your job. So there are many factors which create unnecessary stress, and this stress leads to diseases, spoiled relationships, and there are many other problems which occur due to stress. So in this video I will discuss few tips, few techniques which you can use to surely reduce your stress. So the first one and the best one is listening to music. Music is having great healing capabilities. It shifts your vibrations into pleasantness, and mainly if it is classical music or slow music, it will surely have a long lasting effect on your mental health. So you must listen to music if you are feeling stressed, may it be little. Most important, sad songs must be avoided because sad songs will ultimately make you sad. So it's better to go for good music, classical music. Most important, keep smiling. It is scientifically proven that even a fake smile can reduce stress and lower heart rate. When we smile, our brain automatically gets the signal that we are happy. So, happiness hormones are generated in the body. So, smiling is the best way to keep stress away, and moreover, if you add little laughter, it will definitely help you to keep your stress away. Self hypnosis. It is the process of making your mind believe that something which is opposite of the current situation. Let me give an example. For example, you are suffering from fever or some disease. You can repeatedly tell your mind to believe that you are not having that disease. You are disease free. If you repeat this process many times a day, even for weeks, until you achieve the needed health. So, this is also a practically proven technique. By using self hypnosis, you can tackle most of your problems. Expression. Express your emotions. See, most of the people, what they do is whenever they are angry, they are sad, they try to put them into a dark room and sobbing in isolation. This is not the best way. The best way to release stress is you should express your emotions. You can write them on a blank paper and dispose of that paper later on. You can pluck any leaf from any plant. While keeping it in your hand, you can speak and express your thoughts before it, express your emotions before it, and then again dispose it off. You can discuss your problem with your friends, your family members, whom you are confident of that they will not share your problem with others. And if your stress levels are really high, you must take help of a counselor. They can surely help you. Healthy food. This is the most important thing. We should eat live food, preferably fruits and vegetables. It's better to avoid non-vegetarian food and alcohol as they lower our pranic energy. Pranic energy is basically energy inside our body which is essential for healthy mind and healthy body. Sleep. Sound sleep is must. Sleeping gives our conscious mind to take rest, and unconscious mind can find solutions to our problems. So it is scientifically said or doctors prescribe that 8 hours a day sleep must be there to keep mind free from stress. Clear goals. See, in our life, whenever whether we are a student or in job or in a business, we always define some goals to achieve, but goals must be realistic and they must be clear. If your goals are clear, you can easily find methods and techniques to fulfill the goals. So goal must be clear. Physical exercise in any form can strengthen our body and refreshes our mind, and moreover it takes our mind away from the matters which are causing stress. Moreover,
When we do some physical exercise, it increases the production of endorphins in brain. Endorphins are hormones that make you feel good, hence stress will be automatically removed. Moreover, it also increases self confidence, improves mood, makes body and mind relaxed, and moreover it also improves sleep quality, so that would definitely help to come out of stress if you are having any. Set your priorities. See, in life we have to do multiple things, many things, like we are having family, we are having a job, we are having business, and there are so many other things. So if we don't clearly know what is important in our life, it would create unnecessary headache and chaos and other stress related problems. So we must define our priorities in our mind in very clear manner, so that we can take actions accordingly to improve our life and keep our stress away. Multitasking is considered good in corporate world, means a one person is doing multiple things at a time, but our mind has some restrictions. Mind can deal with only one thing at a time. So if we do multiple things at a time, it will surely create unnecessary stress, because mind will have to switch from one task to another. Moreover, it also degrades productivity and results in increased stress levels. So multitasking should be avoided if possible. Meditation is a proven method to relax muscles and mind to take rest. It makes both mind and body calm, so that body and mind can repair themselves, and moreover it also prevents new damages that may occur due to stress. So you must meditate on regular basis. तो अगला पॉइंट है स्पेयर टाइम फॉर योरसेल्फ। इसका मतलब है कि हमें अपने लिए तो टाइम निकालना ही चाहिए। स्ट्रेस में अगर इफ वी स्पेंड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम इन वन एरिया ऑफ लाइफ वाइल इग्नोरिंग अदर एस्पेक्ट्स। जैसे देखिए, हम सब लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो सपोज अगर हम अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम सिर्फ जॉब या बिजनेस को देंगे और अपने फ्रेंड्स फैमिली को इग्नोर करेंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो एटीट्यूड है ये स्ट्रेस लेके आएगा ही आएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें अपनी लाइफ को इस तरह से जीना है कि हमें स्ट्रेस ना हो। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने लिए टाइम निकाला जाए। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली और फ्रेंड्स। अब क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि जब आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हैं तो आपको किसी तरह की टेंशन बिजनेस की, जॉब की नहीं होनी चाहिए। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप कहीं पिकनिक पे चले जाएं, आउटिंग पे जाएं, वाइल कीपिंग योर फोन्स ऑफ। सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आज की डेट में फ़ोन एक ऐसी बीमारी है जो हमें कभी भी चैन से नहीं बैठने देती। तो अच्छा यही रहेगा कि हम अपने फ़ोन्स को ऑफ कर दें, दूर कर दें, जब हम अपनी फैमिली के साथ हों या फ्रेंड्स के साथ हों। अवॉइड रीजंस ऑफ स्ट्रेस। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, पर ट्राई करें तो बात बन भी सकती है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स एंड पीपल बिकॉज दे डैमेज आवर हेल्थ। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स और लोगों को अवॉइड करके हम अपनी हेल्थ को ख़राब होने से बचा सकते हैं, जो कि स्ट्रेस लेके आएगा। एंड रेगुलर स्ट्रेस एट वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मे क्रिएट मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। और यदि आप अपनी जॉब में, बिजनेस में बड़े लंबे समय तक स्ट्रेस्ड हैं तो वो आपको मेंटली भी बीमार कर सकता है। सो अगर आप जॉब में हैं तो इट्स बेटर कि यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको लग रहा है कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे, तो इट्स बेटर कि आप कोई अच्छा जॉब ढूंढें, एक ऐसी नौकरी ढूंढें जिसमें आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो, और वो देखिएगा वो डेफिनेटली आपकी लाइफ को स्मूथ करेगा, बेटर करेगा। Accept the situation. Sometimes there are certain people or situations that we can't ignore, especially at family front. अब देखिए, पिछले केस में तो था ना कि मैंने आपसे डिस्कस करा कि सपोज आपकी जॉब है, यहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं है, स्ट्रेस बड़ा ज़्यादा है, तो जॉब चेंज कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट कई बार क्या होता है कि हम कुछ लोगों को या सिचुएशंस को इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली एट फैमिली फ्रंट, खास तौर पे फैमिली वाले केस में।
सो वी शुड लर्न टू लिव विद देम। तो हमें सीखना पड़ेगा उन सिचुएशन के साथ रहना जीना। और द सिंपलेस्ट मैथड इज टू जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज़ एंड डोंट फाइट अगेंस्ट इट। तो इसका सबसे अच्छा सिंपल तरीका ये है कि जो भी हो रहा है उसे हमें एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट फाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अपनी सिचुएशंस के साथ फाइट करते रहेंगे तो वो अपने साथ फाइट करने जैसा है। तो ऐसे केस में कि जहां आपके हाथ पे कुछ नहीं है तो इट्स बेटर कि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और लाइफ को आगे मूव करें। एंड व्हेन वी ब्रिंग एक्सेप्टेंस इन आवर लाइफ आवर स्ट्रेस लेवल्स ऑटोमेटिकली गो डाउन। और जब हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली ही कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। डू समथिंग यू लव। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगता है कि आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कुछ टाइम अपनी हॉबीज़ के लिए निकाल सकते हैं और कुछ टाइम आप उस काम के लिए लगा सकते हैं जिससे कि स्ट्रेस दूर हो, जिसको आप रियली इन्जॉय करें। जैसे कि सपोज आप मूवी देखने जा सकते हैं या कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपको मज़ा आए। हॉबी लाइक गार्डनिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, स्टिचिंग और गोइंग टू जिम। उसके अलावा गार्डनिंग की जा सकती है, गाना गाया जा सकता है, गाना सुना जा सकता है, पेंटिंग है, स्टिचिंग है, जिम जा सकते हैं। सो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं जो ये आपका स्ट्रेस डेफिनेटली ख़त्म कर सकती हैं। और उसके अलावा कोई एनजीओ ज्वाइन की जा सकती है, यहाँ पे आप नीडी और गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं और देखिएगा उससे आपका स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली डाउन जाएगा। देन वॉक करना, मॉर्निंग या इवनिंग में यदि आप वॉक करते हैं तो वो डेफिनेटली स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मोर ओवर जब आप वॉक पे जाते हैं तो आपको टाइम मिलता है अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर जाने का, जिससे कि आप अपनी लाइफ के उन एस्पेक्ट्स को भी देख सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में बढ़िया हैं और जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। रिड्यूस टी कॉफ़ी इनटेक। हालांकि ये माना जाता है कि टी कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो मूड को इम्प्रूव करता है और मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ करता है, मगर कैफ़ीन की हाई डोजेज जो हैं वो स्ट्रेस रिड्यूस इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकती हैं। सो इट्स बेटर कि आप टी कॉफ़ी को एक लिमिटेड अमाउंट में लें। मोर ओवर जो कैफ़ीन है वो अलर्टनेस बढ़ाता है, जिससे कि हम अलर्ट रहते हैं, वेक रहते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में इस तरह से आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो लेटर ऑन स्ट्रेस लेके आएंगे। सो एक लिमिट में टी कॉफ़ी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर ज़्यादा अगर इनटेक है तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली पैदा करेगा। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट होता है कि चीज़ों को डिले करना। आपको जो काम आज मिला है उसको आज के आज ही ख़त्म कर लें, क्योंकि यदि आप उसको डिले करेंगे तो क्या होगा, काम जब पूरे नहीं होंगे, गोल्स अनफुलफिल्ड रह जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट हो जाएंगी। तो उससे आपका जो सेल्फ स्टीम है या कॉन्फिडेंस है लो होगा, रेपुटेशन भी ख़राब होगी और ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि जो भी काम इन हैंड है उसको ख़त्म किया जाए जितना जल्दी हो सकता है। कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हैं, किड्स को खेलता देख सकते हैं, ये डेफिनेटली मूड इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करता है। टोबैको, निकोटीन। हालांकि माना जाता है कि ये स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इनको लेने से एक्टिविटी बढ़ जाती है बॉडी की और ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। तो मेरी सजेशन है कि टोबैको, निकोटीन को अवॉइड करना चाहिए यदि आप स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं। तो ये टिप्स थे स्ट्रेस को रिलीज़ करने के, रिलीव करने के, ख़त्म करने के। यदि वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।